बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट ईयर क्लास और लेक्चर नंबर 7 के साथ अंजुम मजीद ख्वाजा सर अंजुम टीस के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर खिदमत है। डियर स्टूडेंट्स, हमें इस क्वेश्चन में फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स ये देखें, होल पावर दी हुई है आपके पास -1। जब आपके पास पावर माइनस में दी हो तो उसको प्लस में करने के लिए आप उसको नीचे डिनोमिनेटर में लिखते हैं। सो होल पावर आपकी +1 हो जाती है और आपने इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को के कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। रीजन आपको पता है कि डिनोमिनेटर में कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास 2 - 4 आयोटा से हमने मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। जब हम इसको 1 से करेंगे तो ये 2 - 4 आयोटा ही आएगा। a + b और a - b आप सब जानते हैं a² - b² के इक्वल होगा। 2 - 4 आयोटा, 2 का स्क्वायर स्टूडेंट होता है 4, 4 आयोटा का स्क्वायर होता है 16 आयोटा स्क्वायर, ये होता है। और आप सब जानते हैं स्टूडेंट, आयोटा स्क्वायर आपका रियल नंबर होता है क्योंकि इसकी वैल्यू -1 होती है। 4 - 16 - 1। जब आप एक चीज और देखें, इन सब में से 2 कॉमन भी आ रहे हैं। जब 2 कॉमन निकालेंगे तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, ये आ गया स्टूडेंट। 4 माइनस माइनस प्लस तो 4 + 16 आ गया। स्टूडेंट्स इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो 16 और 4 हमारे पास 20 हो जाएंगे। तो 2 1s are 2, 2 10s are 20। आपने इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में सॉल्व करना है। सो यू शुड नॉट हैव एनी डिनोमिनेटर ऑफ दैट इज ऑन बोथ ऑफ देम। सो यू हैव टू प्रोवाइड दिस ऑन बोथ। आपने इसके नीचे भी रखना है और इसके नीचे भी रखना है। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 1s are 2, 2 5s are 10। आपके पास 1/10 और -1/5 आयोटा आ गया। इसमें से 1/5 को अलग करते हैं, आयोटा अलग करते हैं। ये इसका रियल है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। यूं हमने इनको उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट में डिसॉल्व कर दिया। जी डियर स्टूडेंट्स, हम चलते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 2 है। यहां भी पावर आपके पास माइनस में दी है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज टू कन्वर्ट इट इनटू प्लस पावर। सो दैट कुड बी रिटन एज -3 दिस इज √-4। स्टूडेंट्स ऑब्वियसली √-4 कैन बी रिटन एज 2 आयोटा। Why? Because this is actually 4 multiply -1. If you just separate minus and plus numbers, one you multiply both of them, it will give you -4 straight away. So this square root is on 4 and -1 as well. So square root of 4 is 2 and -1 square root is iota. So you can write it as 2 iota and this is +2 power. Now, obviously, when you have any complex number in denominator, what do you do actually? You just convert it into a simple normal number. To do this, you multiply by the conjugate. But the thing is, you got the square here. First, find the square so that it could be dissolved into real complex number. Like, you know, a minus b whole square is a square plus b² and -2ab. A is 3 and b is 2 iota. So further when you solve it, the square of 3 is 9, the square of 2 iota is 4 iota square, and this is 2 3s are 6, 2s are 12, -12 iota. And you know, square of iota is -1. So -1 is multiplied by 4 will give you -4. So 1/9 - 4 -12 iota. So student, move to this. So when you subtract these two, you're gonna get 1/5. This is -12 iota. Student, we all know
that if we get the complex number in denominator, what do? We just change it into real number by multiplying the conjugate of this. That is going to be this one, and you have to do the same job with in denominator as well. So now when you multiply this one by 1, it is going to give you 5 plus 12 iota, and you know all a minus b, a plus b is a square minus b square. 5 plus 12 iota is divided by the square of 5 is 25. 12 square is 144 iota square. And you know all, the iota square is a real number, means minus 1. When minus 1 is multiplied with minus 144, it is going to give you plus 144. So that would be 144. Just add them. When you add them, you get 5 plus 12 iota over 169. And you know, we have to just bring it into real and imaginary parts. So what do? We have to put this one under 5 because this is with this and this as well. So just put these this value in the denominator of both these numbers. So this is got the real part and this is an imaginary part. I hope you understood this very well. स्टूडेंट, हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं. गलतन थर्ड पार्ट है ये. आपके पास होल पावर -1 दी है. अगर आपके पास माइनस में हो, न्यूमरेटर में कोई चीज हो, उसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करें. अगर डिनोमिनेटर में कोई चीज हो, उसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करें. यानी हम इसको ये कर सकते हैं कि 3 माइनस आयोटा को ऊपर ले जाएं और 7 प्लस 2 आयोटा को नीचे ले जाएं, तो इसकी पावर भी 1 हो जाएगी और इसकी पावर भी 1 हो जाएगी, जिसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है. अब स्टूडेंट, हमने क्या करना है, इसको हमने इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है और इसी के कॉन्जुगेट से हमें डिवाइड भी करना है इन ऑर्डर टू रेशनलाइज इट्स डिनोमिनेटर. हमने इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, रियल नंबर में आना चाहिए. अच्छा स्टूडेंट, ये देखें, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं. इसका मतलब है कि 3b 7 माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा. इसी तरह माइनस आयोटा भी 7 माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा. a प्लस बी और a माइनस बी होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के. 3 7s are 21, 3 2s are 6 iota, iota 7s are 7 iota, iota 2s are minus minus plus 2 iota square. तो स्टूडेंट 7 का स्क्वायर होता है 49, इसी तरह 2 का स्क्वायर होगा 4 और आयोटा का स्क्वायर होगा आयोटा स्क्वायर. स्टूडेंट, इसको मजीद सॉल्व करें. 21, ये देखें माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा. आपके पास -13 आयोटा आ गया. आयोटा स्क्वायर का मीनिंग -1 होता है. -1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा ओवर 49 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर. आयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल. 21 में से जब 2 माइनस करेंगे स्टूडेंट्स 19 आएगा. माइनस माइनस प्लस 49 प्लस 4 हो गया स्टूडेंट्स, और ये 53 बनता है. इस 53 को आपने इस 19 के नीचे भी लिखना है और ये 13 के नीचे भी 53 को लिखना है. 7 आयोटा लिखना है. यूं हमारे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स सेपरेट हो जाएंगे. डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4 में भी हम ऐसा ही करेंगे. होल पावर माइनस में दिया है. स्टूडेंट, जब हम इसको होल पावर -2 देंगे और इसको देंगे तो दोनों आपस में स्वैप हो जाएंगे. यानी आपके डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में होगा. यानी 2 प्लस 5 आयोटा ऊपर चला गया और 4 प्लस 2 आयोटा नीचे चला गया. लेकिन एक चीज है कि इसके ऊपर भी +2 पावर आ गई, इसके ऊपर भी +2 पावर आ गई. दे आर नॉट माइनस पावर विथ माइनस पावर एनी मोर. ये माइनस पावर के साथ अब नहीं है. स्टूडेंट, हम इसको सॉल्व करते हैं. a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab. ये हमने इसका स्क्वायरिंग ओपन की.
सेम यहां भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 का स्क्वायर होता है 4, ये आ जाएगा 25 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर दोनों के ऊपर है। 5 2 10 2 20, 20 आयोटा। 4 का स्क्वायर होता है 16, 2 आयोटा का स्क्वायर होगा 4 आयोटा स्क्वायर, 2 4 8 2 16 आयोटा। स्टूडेंट आयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल। 4 + 25 -1, वैसे मैं लिखना नहीं चाह रहा था क्योंकि मैं डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करता, लेकिन मैंने कहा सब क्वेश्चंस के साथ ऐसा ट्रीट ना करूं ताकि ये ना हो कि आपसे कोई कॉन्सेप्ट मिस हो जाए। तो यहां मैंने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू स्टूडेंट्स लिख ली, -25 आ गया, -25 + 20 आयोटा। यहां भी माइनस प्लस माइनस, तो 16 - 4 आ गया, +16 आयोटा। स्टूडेंट्स 25 में से 4 जाएगा तो माइनस का 21 बच जाएगा, क्योंकि साइन बड़ी वैल्यू का लगना है, +20 आयोटा। 16 में से जब 4 माइनस करेंगे तो 12 आएगा इंटू 16 आयोटा। Finally, we have got something to show you, but still you can see that the denominator is with complex number. So to change into real number, we need to multiply it by the conjugate of the denominator. हमें conjugate से multiply और divide करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स पहले आप -21 इंटू 12 - 16 आयोटा लिखेंगे, फिर 20 आयोटा इंटू 12 - 16 आयोटा लिखेंगे। यहां भी a + b और a - b होगा, a² - b² के। स्टूडेंट्स वैसे कैलकुलेटर की जरूरत पड़ सकती है। 12 21 से मल्टीप्लाई होगा, 12 1 = 12, 2 = 20 25। यस, ये आ गया। 21 को जब हम 16 से करेंगे माइनस माइनस प्लस, ये माइनस था तो 16 1 = 16, 2 = 30 33, 33 आयोटा हमारे पास आ गया। 20 आयोटा को जब 12 से करेंगे तो 240 आयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 20 आयोटा को 16 आयोटा से करेंगे 320 आयोटा स्क्वायर आ गया। 12 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स 144, 16 का स्क्वायर होता है 256, और साथ ही आप आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर लगाएंगे तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया। ये थोड़ा बड़ा हो गया स्टूडेंट, लेंथी क्वेश्चन है। आप देखें ये दोनों प्लस के प्लस 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 होंगे, 336 आयोटा में हम 240 आयोटा ऐड कर लेंगे। यहां आए 250, माइनस का था, माइनस का 252, जब इन दोनों को ऐड करेंगे 576 आयोटा। आयोटा स्क्वायर स्टूडेंट्स -1 के इक्वल होता है, माइनस माइनस हो गए प्लस, प्लस 320, और ये हमारे पास है 144, और आयोटा स्क्वायर चूंकि -1 के इक्वल होता है, माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा, +256 -252, आई एम सॉरी, प्लस माइनस माइनस होगा, 320 में से हमें 52 माइनस करना पड़ेगा, 68 आई थिंक आ रहा है। अब चेक करें, 68 आ रहा है। 320 में से 252 माइनस करें, 68 आ रहा है, तो ये आ गया 68 प्लस 576 आयोटा, और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आई थिंक ये 400 आ रहा है। यस, 400 स्टूडेंट इसके नीचे भी लिखा जाएगा, 400 आप इसके नीचे भी लिख सकते हैं, और अगर कुछ चीजें सिंप्लीफाई हो रही हैं कर दें, जैसे मैं देख रहा हूं 4 1 = 4, 4 7 = 28, 400 = 400। यस, यहां भी जा रहा है, 4 1 = 4, 4 9 = 36, 4 4 = 16, आई एम सॉरी, 4 1 = 4, 4 4 = 16,
एंड 4 4 16, यस, और यहाँ 400 तो ये आ गया हमारे पास 17/100 प्लस, आई एम सॉरी ये मजीद सिंप्लीफाई हो रहा था, 2 7 14, 2 2 4, 2 50 100, ये मजीद भी 236 और 225, सो हमारे पास 36/25 आयोटा, दिस इज आवर फाइनल आंसर। स्टूडेंट इसको भी रियल और इमेजिनरी पार्ट में आपने सॉल्व करना है। ये देखें, इस दफा आपके पास कोई माइनस पावर नहीं दी, सो दिस इज द थिंग टू रिजॉइस योरसेल्फ। आप इजी हो जाए, बस आपने सीधा सीधा स्क्वायरिंग ओपन करनी है। a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सेम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 5 का स्क्वायर होगा 25, 4 का स्क्वायर होगा 16 और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा ये 2 5 10 4 40 आयोटा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट 25, 16 आयोटा स्क्वायर और 2 5 10 4 40 आयोटा, यहां भी आ गया स्टूडेंट। स्टूडेंट जब हम इसको ओपन करेंगे, आप जरा देखिएगा, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। जब -1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 माइनस 16 -40 आयोटा आ गया। आयोटा स्क्वायर -1 के साथ होगा, यहां भी यही चीज आ रही है हमारे पास। क्या आ रहा है आपके पास? -16 प्लस 40 आयोटा। 25 में से जब आप स्टूडेंट 16 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 9 माइनस 40 आयोटा, और नीचे 9 प्लस 40 आयोटा जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे, सो यू गेट दीज थिंग्स। स्टूडेंट अगेन आपके पास डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसी के कॉन्जुगेट से इसको डिवाइड भी करेंगे। ये दोनों एक ही जैसे स्टूडेंट, आप लिख सकते हैं 9 माइनस 40 आयोटा का होल स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। स्टूडेंट्स a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 9 का स्क्वायर होगा 81, 40 का स्क्वायर होगा 1600 आयोटा स्क्वायर, ये आ गया। 9 का स्क्वायर होगा 81, 40 का स्क्वायर होगा 1600 आयोटा स्क्वायर, 2 9 18 4 72 720 आयोटा, ये आ गया स्टूडेंट्स। आयोटा स्क्वायर स्टूडेंट -1 के इक्वल होता है, -1 इसको माइनस कर देगा, यूं 81 प्लस 1600 आ गया आपके पास। आयोटा स्क्वायर स्टूडेंट्स होता है -1 के इक्वल। जब आप -1 को 1600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास -1600 आ जाएगा। तो यहां से जब ये ऐड करेंगे ये 1681 आ गया। 1600 में से 81 माइनस करेंगे तो 1519 आएगा, माइनस का को साइन बड़ी वैल्यू का लेगा, माइनस का 1519, यस। अगर इन दो को माइनस करते हैं -720 आयोटा। स्टूडेंट ये 1681 इसके नीचे भी है और यही 1681 इसके नीचे भी है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6, इनफैक्ट 9 का 6 पार्ट आपके पास क्वेश्चन दिया है, वेरी सिंपल। आफ्टर व्हेन यू सॉल्व सो मेनी कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सो व्हाट यू नीड टू डू इज टू जस्ट रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स। आप क्या करेंगे, इसी के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। स्टूडेंट्स जानते हैं कि 3 भी 2 - 5 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा और इसी तरह -7 आयोटा भी 2 - 5 आयोटा से
मल्टीप्लाई होगा। a प्लस बी और a माइनस बी होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। 3 2s are 6, 3 5s are 15 iota, 7 2s are 14 iota, minus minus plus 7 5s are 35 iota square। 2 का स्क्वायर होगा 4 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर। क्या आ गया स्टूडेंट? सॉल्व करते हैं। ये देने दोनों आयोटा के माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन बड़ी वैल्यू का माइनस का लगेगा, सो दिस वाज गोना बी 29 आयोटा। -1 होता है आयोटा स्क्वायर, आप जानते हैं आयोटा स्क्वायर एक रियल नंबर है, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -35 आ जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर माइनस है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये हमारे पास आ गया। स्टूडेंट ये देखें, ये माइनस का 35 है, ये 6 का है, माइनस प्लस माइनस होता है, 35 में से 6 गया तो माइनस का 29 आ गया, और ये भी माइनस का 29 आयोटा आपके पास दिया हुआ है। नीचे भी स्टूडेंट 29 बन रहा है, सो मेनी 29s, and this could give you some very happiness. Why? Because when you take out 29 as common, this is gonna get -1 and that would be minus iota only, so 29 is here, so just simplify them with each other, so your answer is -1 and minus, इसको 1 बेशक लिख लें, नहीं तो आयोटा ही डाल दें, so ये हमारा इसका सोल्यूशन आ गया। स्टूडेंट्स अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि Z1 ये हो और Z2 ये हो, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, कहता है प्रूव करें कि Z1 का मैग्नीट्यूड माइनस Z1 के मैग्नीट्यूड और Z1 के कॉन्जुगेट के मैग्नीट्यूड माइनस Z1 के कॉन्जुगेट के मैग्नीट्यूड के इक्वल होंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं Z1 का कॉन्जुगेट, इसको सॉल्व करते हैं। Z1 का कॉन्जुगेट का मतलब होता है, Z1 क्या दिया स्टूडेंट, -3 + 2 आयोटा, और इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड जिसको मॉडुलस का एक साइन भी कहा जाता है, इसको सॉल्व करने का मेथड मैंने बताया था कि रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है। दिस इज हाउ डू यू डू। तो 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और ये 4, तो स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 13। आते हैं स्टूडेंट दूसरे पार्ट की तरफ, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 सॉरी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ Z1, ये सॉल्व करना है। माइनस Z1 का मैग्नीट्यूड भी इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले आप माइनस लगाएंगे, फिर Z1 की पूरी वैल्यू लिखेंगे। Z1 की वैल्यू है -3 + 2 आयोटा का मैग्नीट्यूड। स्टूडेंट्स आप जानते हैं माइनस अंदर के साइन को चेंज कर देगा, तो 3 - 2 आयोटा आ जाएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना आपने, कैसे करेंगे? अगेन रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। 3 का स्क्वायर होता है 9 -2 का स्क्वायर होगा 4, और जब आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 13 आ जाएगा। स्टूडेंट्स अब आपने Z1 के कॉन्जुगेट का मैग्नीट्यूड निकालना है। Z1 के कॉन्जुगेट का मैग्नीट्यूड निकालना है। Z1 का है स्टूडेंट, ये है -3 + 2 आयोटा, और इसके ऊपर कॉन्जुगेट का साइन डाल दें। कॉन्जुगेट में आप जानते हैं क्या किया जाता है कि आयोटा की वैल्यू का साइन चेंज किया जाता है, यानी इमेजिनरी पार्ट का साइन। सो आपका -2 आयोटा हो जाएगा। अब आपने इसका कॉन्जुगेट निकालना है। स्टूडेंट -3 का स्क्वायर होगा और प्लस -2 का स्क्वायर होगा, तो यहां पे स्टूडेंट्स 9 + 4 का स्क्वायर रूट आ रहा है, एंड द फाइनल आंसर इज द सेम एज यू हैव बीन ट्राइंग फॉर द अदर्स एज वेल। सो गो फॉर द लास्ट पार्ट, दैट इज -Z1 कॉन्जुगेट मैग्नीट्यूड। -Z1 का कॉन्जुगेट का मैग्नीट्यूड निकालना है। आप जानते हैं माइनस ये इक्वल होगा -Z1 की वैल्यू क्या स्टूडेंट, ये देखें 1 - 3 आयोटा और इसका कॉन्जुगेट। पहले आप कॉन्जुगेट निकाल लें, क्योंकि कॉन्जुगेट एक्चुअली
आई एम सॉरी स्टूडेंट, ये मैंने Z2 की वैल्यू लिख दी है। Z1 की थी -3 + 2 आयोटा, -3 + 2 आयोटा, माइनस अंदर के साइन चेंज करेगा, 3 - 2 आयोटा रह जाएगा और उसका कॉन्जुगेट अब आपने लेना है। आई एम सॉरी, बल्कि अभी हमारा रहता था इसके ऊपर ये कॉन्जुगेट का साइन भी है, माइनस कॉन्जुगेट जब हटाएंगे तो -2 आयोटा हो जाएगा। और आप जानते हैं कि माइनस अंदर के साइन क्या करेगा, चेंज। तो स्टूडेंट फाइनल आंसर हमारा ये आ जाएगा। जब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आप जानते हैं 3 का मैक्स का स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो 9 + 4 का स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर रूट ऑफ 13 आ गया। यूं आपने देखा कि ये तमाम आंसर्स हमारे सेम हो गए। सो ये प्रॉपर्टी जो आपने फाइंड करनी थी दैट होल्ड्स, और याद रखिएगा ये हमेशा आपस में इक्वल ही होते हैं। स्टूडेंट्स मूव करते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। आप पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लें। ये ले स्टूडेंट, हमने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ पहले जो है वो स्टार्ट किया। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है Z1/Z2 का कॉन्जुगेट। Z1 क्या है स्टूडेंट, -3 + 2 आयोटा, और Z2 है 1 - 3 आयोटा, और इसका होल कॉन्जुगेट दिया हुआ है। स्टूडेंट होल कॉन्जुगेट में पहले आप इन दोनों को साइन सॉल्व करके रियल और इमेजिनरी पार्ट में लेकर आए और फाइनली कॉन्जुगेट आपने फाइंड आउट करना है। मतलब क्या हुआ ये देखें, आप इसी -3 + 2 आयोटा ओवर 1 - 3 आयोटा है, आप 1 + 3 आयोटा ओवर 1 + 3 आयोटा यानी इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें और ऊपर एक कॉन्जुगेट का साइन लगा दें। अब क्या होगा, ये -3 भी 1 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 आयोटा भी 1 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है। a - b और a + b होता है a² - b² के। -3 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे -3 आएगा, -3 3 are -9 आयोटा, 2 आयोटा 1 are 2 आयोटा, प्लस 6 आयोटा स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होता है 1, ये हो जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर। स्टूडेंट 6 आयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल, -1 को जब 6 से करेंगे तो ये तो दोनों हो गए -7 आयोटा, तो ये हो जाएगा -6, और आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 9 आ गया आपके पास। -3 और -6 स्टूडेंट्स हो जाएंगे -9। स्टूडेंट ये 10 इसके नीचे भी है, अच्छा सॉरी, इनका होल आपने कॉन्जुगेट तो लिखा ही नहीं, यहाँ भी कॉन्जुगेट डालना था, यहाँ भी कॉन्जुगेट डालना था, और इवन यहाँ भी आपने कॉन्जुगेट का साइन डालना है। तो इसी तरह ये 10 इसके नीचे भी होगा, -7 आयोटा ओवर 10, और इसके ऊपर भी कॉन्जुगेट का साइन डालना है। स्टूडेंट व्हेन यू हैव फाइनली सॉल्व्ड इट, व्हाट डू यू हैव टू डू द नेक्स्ट, आपने इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। कॉन्जुगेट में आप जो इमेजिनरी नंबर है उसका साइन चेंज करेंगे, यानी हमारे पास -9/10 प्लस 7/10 आयोटा हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर फॉर द लेफ्ट हैंड साइड, जब हमने इस माइनस का साइन चेंज किया। आई एम सॉरी, मुझे मेरे पीछे कैमरामैन बैठे, उन्होंने बताया कि ये 10 नजर ही नहीं आ रहा, तो मैं चाहूंगा कि इसका फाइनल सोल्यूशन यहां देख लूं। -3/10 ये 10 इसके नीचे भी होगा, पहले आपने -3 और -6 करना है, जो कि -9 आएगा। -9 के नीचे भी 10 देना है, और -7 आयोटा के नीचे भी 10 देना है, और सबके ऊपर कॉन्जुगेट रखना है। और स्टूडेंट कॉन्जुगेट में क्या करते होते हैं आप कि साइन को चेंज कर देते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर ये आ गया। अब चलते हैं इसके राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड, व्हाट इज द राइट हैंड साइड? ये स्टूडेंट Z1 का कॉन्जुगेट Z2 के कॉन्जुगेट को आपस में डिवाइड करना है।
Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 के कॉन्जुगेट को सॉल्व करना है। स्टूडेंट Z1 क्या है? -3 + 2 आयोटा, बल्कि यहीं सॉल्व करते हैं। -3 + 2 आयोटा, इसके ऊपर भी कॉन्जुगेट का साइन। और Z2 क्या है? 1 - 3 आयोटा, इसके ऊपर भी कॉन्जुगेट का साइन हम लगाएंगे। कॉन्जुगेट अब आपके इंडिविजुअल्स दिए स्टूडेंट, यहां तो आपका होल कॉन्जुगेट था, सो आपने क्या किया, पहले उसको सॉल्व किया और फाइनल आंसर का कॉन्जुगेट आपने फाइंड किया। यहां आपका इंडिविजुअल कॉन्जुगेट्स हैं, सो आप कॉन्जुगेट फाइंड कर ले। ये -2 आयोटा आएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा, +3 आयोटा आएगा। जब आप यहां तक पहुंचे तो आपने देखा कि नीचे आपका दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर, और आपको पूरी सारी समझते होगी ये कि जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए तो उसी के कॉन्जुगेट से आपने मल्टीप्लाई करना है और उसी के कॉन्जुगेट से आपने डिवाइड करना है। जी स्टूडेंट, -3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 × 1 - 3 आयोटा, इसी तरह -2 आयोटा × 1 - 3 आयोटा। नीचे है जी a + b और a - b होगा a² - b² के। -3 1s are -3, -+ 3 3s are 9 आयोटा, -2 आयोटा, +6 आयोटा स्क्वायर। 1 का स्क्वायर स्टूडेंट हो जाएगा 1, 3 आयोटा स्क्वायर यहां आ जाएगा आपका। सॉरी 3 का स्क्वायर होगा 9 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। स्टूडेंट अब देखें 9 आयोटा में से 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस होता है, अब जब माइनस करेंगे तो 7 आयोटा आएगा और ये आयोटा स्क्वायर जब इससे मल्टीप्लाई होगा -6 आ जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का मतलब -1 होता है। अब आपका ये देखें -1 माइनस से होगा +9 आ जाएगा, -3 -6 -9 हो गया, ये 10 इसके नीचे भी है और 10 आपका इस 7 आयोटा के नीचे भी है। सो हमारा फाइनल आंसर राइट हैंड साइड का वही है जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। आई होप आप लोग ये क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही अंजुम मजीद ख्वाजा आपसे लेक्चर नंबर 7 से इजाज़त चाहता है। 10th क्वेश्चन के जो बाकी पार्ट्स हैं वो आपके नेक्स्ट लेक्चर नंबर 8 में हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।